السلام علیکم آفاق کی ایک بار پھر حاضر ہوں، مگر یہ ویڈیو میں اپنی گفتگو پر مشتمل نہیں بنا رہا. یہ میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے نارتھ امریکہ میں جو امریکن پاکستانی سینئر صحافی ہیں ان کے مذمتی بیانات لے کر میں یہاں حاضر ہوا ہوں کہ پاکستان میں ہی نہیں، یہاں پر بھی پاکستانی صحافی، پاکستانی امریکن اینڈ کینیڈین صحافی کس حد تک کنسرن ہیں اور کتنے پریشان ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جمہوریت بظاہر نام نہاد جمہوریت کی موجودگی میں جس طرح سے میڈیا پر حملہ کیا گیا ہے اور میر شکیل الرحمان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا جھوٹے مقدمے میں جعلی، اور کیا کہا جائے اس پر کہ ایک پلاٹ کے چکر میں، وہ بھی 35 سال پرانا پلاٹ، اور قانون اور آئین سے بالا کام ہو رہے ہیں. نیب نہیں ہو گیا، ایک خود مختار ریاست ہو گئی، کہ ریاست ودن ریاست جسے کہتے ہیں. میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میر شکیل الرحمان، جیسا کہ حامد میر نے اپنے پروگرام میں بھی کہا اور شہزیب کے پروگرام میں بھی، کہ میر شکیل الرحمان کا اب یہ اعزاز ہے کہ انہیں بھی مولانا ظفر علی خان اور شورش کاشمیری کی طرح گرفتار کیا گیا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تیسری دنیاؤں میں جہاں نظام نہیں ہوتے، جہاں انصاف نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، وہاں ایک مثل بڑی مشہور ہے کہ بڑا لیڈر بھی وہ ہوتا ہے جو جیل جائے، اور بڑا صحافی بھی وہی کہلاتا ہے جو جیل جائے. گو کہ میر شکیل الرحمان کا جو پورٹ فولیو ہے جدوجہد کے حوالے سے اور ان کی سٹرگل کے حوالے سے میڈیا کی آزادیوں کے لیے، میں تو انہیں بہت ایڈمائر کرتا ہوں کہ وہ 96 سے میرے خیال میں، بلکہ 92 سے کہنا چاہیے، شروع ہوتا ہے نواز شریف کے پہلے دور سے، پھر نواز شریف کے دوسرے دور میں، پھر نواز شریف کے تیسرے دور میں بھی، پھر پیپلز پارٹی کے دور میں، مشرف کے دور میں تو سب کو پتا ہے کہ جو ظلم ہوئے، جس طرح سے 77 اور 80 ڈیز کے قریب جیو بند رہا. باقی چینل بھی اس کے ساتھ رہے مگر جیو بہت دیر تک بند رہا. پھر اب آخر میں حد کر دی گئی ہے. میں تو میر شکیل الرحمان کو مبارکباد دوں گا کہ آج بالآخر ان کی جدوجہد رنگ لائی اور انہیں بھی وہ اعزاز بخشا گیا جو تیسری دنیا کے بڑے صحافیوں کو بخشا جاتا ہے، یعنی کہ گرفتاری، اسیری، ظلم، تشدد. مجھے یقین ہے میر شکیل الرحمان اس کڑے امتحان سے کامیاب و کامران، سرخرو اور پوری استقامت کے ساتھ باہر آئیں گے. آئیے ہم اپنے ساتھیوں کے پیغامات سنتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. میر شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری کا مجھے پتہ لگا، بہت افسوس ہوا، بہت تشویش ہے، اور مجھے ان کے کیس کے میرٹس یا ڈی میرٹس کا تو نہیں پتہ، نہ ہی میں اس پہ کامنٹ کروں گا، لیکن میں اس کی ٹائمنگ پر ضرور کروں گا. دیکھیے، ہم گزشتہ کچھ عرصے سے مسلسل یہ خبریں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا پر مختلف قسم کے طریقوں سے اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، اور آزاد میڈیا کے لیے جو سپیس موجود تھی وہ مسلسل کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جو ہمیشہ سے نہ صرف باعث تشویش رہے بلکہ یہ قابل مذمت بھی ہے. اگر میر صاحب کی اریسٹ کی وجہ اس سپیس کو مزید کم کرنا ہے تو یقیناً اس بات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں آزاد میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آزاد میڈیا کی موجودگی کے لیے ٹالرنس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر اس کی وجہ انٹالرنس ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا، اور جو بین الاقوامی برادری ہے، یہاں پر بیٹھے مختلف صحافتی تنظیمیں پہلے سے پاکستان کو بڑے مائکروسکوپیکلی دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک پاکستان میں جو مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ میڈیا پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، کیا یہ حقیقت ہے، اور اس قسم کے واقعات ان شبہات کو شاید مزید تقویت دیں. میں میر شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب کے نام پر جس طرح سے ایک سلیکٹیو وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے کچھ مخصوص لوگوں کی، مخصوص گروپوں کی، اس سے پاکستان کا کوئی بھی انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، اور جو ادارے اور جو لوگ احتساب کرنے پر معمور کیے گئے ہیں ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ احتساب اور انصاف لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آئے، اور اس میں کوئی کسی کی ذاتی انات، کسی کا ذاتی بغض اور ایک سلیکٹیو، ایک ڈسکرمنیشن کے ساتھ لوگوں
का अगर आप एहतसाब करेंगे और उनको इंसाफ पहुंचाएंगे या ना पहुंचाएंगे सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो किसको जानते हैं या वो किस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है या किसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या वो किस पर तनकीद कर रहे हैं या किसका साथ दे रहे हैं, तो इससे ना पाकिस्तान का कोई मफाद वाबस्ता है और ना ही किसी इदारे का। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस होने वाली ज़्यादती पर आवाज़ उठाऊं और इसकी भरपूर मज़म्मत करूं। होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे, और पाकिस्तान में मुझे यही सूरत हाल नज़र आती है कि मामला कुछ भी चल रहा हो, पाकिस्तान में हर रोज़ एक नया शोशा छोड़ दिया जाता है। दुनिया के मसाइल इस वक्त कोरोना हैं, पाकिस्तान के मसाइल मईशत और कोरोना हैं, लेकिन यहाँ हर रोज़ कोई नया शोशा होता है, कभी औरत मार्च और किसी के झगड़े का, कभी कुछ। अब एक नया शोशा जो छोड़ा गया है वो है मीर शकील रहमान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, ये बात अगर मेरिट पे हो रही होती है, अगर ये चीज़ें यहाँ सब कुछ सही चल रही होती हैं और एहतसाब जो है जिसे कहते हैं ना कि बिला इम्तियाज़ हो रहा होता, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसे शख्स की गिरफ़्तारी जिसके बारे में वज़ीर आज़म ख़ुद यहाँ जो है अमेरिका में शाहीन साहबाई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे मुलाकात के मौके पर इजहार कर चुके थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके गिरफ़्तार होना और बाद में कहना कि जी वो नैब ने गिरफ़्तार किया, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इस मीडिया ग्रुप की जानिब से इस हुकूमत पे तनकीद की जाती रही है, तो उसका भी बज़ाहिर यही नज़र आता है कि इसी मीडिया ग्रुप को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। एहतसाब का जो मामला है वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर होना चाहिए, उसमें बिला इम्तियाज़ होना चाहिए और वो सबके लिए होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। जहाँ जो आटे और चीनी के चोर आपकी हुकूमत में शामिल हैं, जहाँ लोगों को ख़रीदने वाले आपकी हुकूमत में शामिल हैं, तो वहाँ इस तरह के इक़दाम लोगों को मज़ीद शक व शुबे में डालेंगे। और ये याद रखें कि ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। आपसे शायद आपको बदनाम करें, मैं इमरान खान को मशवरा दे रहा हूँ, शायद ये आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अगर आप नहीं करवा रहे तो साजिश आपके ख़िलाफ़ है और इसका भरपूर जायज़ा आपको लेना होगा। और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर ये मामला है, ठीक है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा फिर सबको मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ वादे इशारे इस बात के हैं कि ये एक सियासी इंतकाम है, क्योंकि वो कहीं भागने वाले नहीं थे और अदालत ने भी ये कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए जिनके भागने का शुबा ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्रम शहजाद, प्रेसिडेंट इलेक्ट पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन पापा वाशिंगटन। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी जो यकीनन एक पॉलिटिकली मोटिव एक्शन है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत और जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उनको बताना चाहते हैं कि इस तरह के इकदाम ना सिर्फ पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनली वो ख़राब करता है, बल्कि इंटरनली पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करता है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो चैलेंजेस रहे हैं ख़ासतौर पर पिछले 3 सालों में, वो काफ़ी अफसोसनाक हैं। मीडिया का जो हाल हुआ है वो इसी तरह के इकदाम की वजह से हुआ है। 30 साल पुराने केसेस को सामने ला के विक्टिमाइजेशन की जा रही है, लोगों को एक खौफ व खराश की जो कैफियत की पैदा की जा रही है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो केस है इंटरनेशनली, जिसे हम वाशिंगटन में रह के काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। लेकिन इस तरह के इकदाम जो हैं जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो या इस तरह के पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, जिसके अंदर इदारों को जो खौफजदा किया जा रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये जो जंग और जियो ग्रुप के CEO मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी है, और ये बिल्कुल इमरान फस्ताई जो पपेट हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है, उसकी बिल्कुल सियासी इंतकामी कार्रवाई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, साबिक सदर को गिरफ़्तार करना, अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों को जो है हिरासा करना, उनको गिरफ़्तार करना, उनके अहले खाना को जो है हिरासा और गिरफ़्तार करना, और प्रेस का और फ्रीडम ऑफ प्रेस का और मीडिया का गला दबाना, और सिर्फ अपनी ही पसंदीदा मीडिया को या जो कि उनके कंट्रोल में आए उनको ही जो है करना, जो है प्रमोट चाहें, और बाकी जो है उनको इस्तेफल करना, जिस तरह उन्होंने डॉन के साथ किया हुआ है, जिस तरह जंग और जियो के साथ किया हुआ है। तो ये बिल्कुल बदनीयती में मबनी है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं बहैसियत सहाफ़ी मीर शकील रहमान साहब की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करती हूँ। ये गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त में हुई है जब मीडिया बुहरान का शिकार है। दुनिया भर का प्रेस पाकिस्तानी मीडिया पर होने वाली ज्यादतियों की खबरें दे रहा है, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया की जिंदा दिली की एक तवील रवायत है, मगर इस वक्त वो डीप स्टेट का हदफ बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मोदी साहब के बेहद मद्दाह हैं
और वो भी अपने मीडिया को भारतीय मीडिया की तरह गोदी मीडिया में तब्दील करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में रोज़नामा जंग और जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की खबर यहाँ न्यूयॉर्क में हमारे लिए बड़ी तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से मीडिया के हलकों की जानब से आज़ादी इजहार और सेंसरशिप के हवाले से जो तशवीश का इजहार किया जाता था, उन हालात में ये ख़बर एक बाइस तशवीश है। एहतसाब सबका होना चाहिए, सहाफ़ियों का सबसे पहले एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब का अमल जो है वो गैर जानबदार होना चाहिए, साफ़ और शफाफ होना चाहिए और होता भी नज़र आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामलात को हुकूमत को चाहिए कि वो क्लियर करे और इस तशवीश के हवाले से जितने भी सवालात उठे हैं उनको फौरी तौर पर उनका जवाब दिए जाने चाहिए। मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। उर्दू खबरनामा कनाडा, इसका एडिटर बात कर रहा हूँ। पता चला है कि मीर शकील उर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया नैब के ऑर्डर्स पर। तो मीर शकील उर रहमान का अरेस्ट किसी बहुत पुरानी कोई जायदाद है उसके ऊपर अब अरेस्ट किया गया है और ये वाज़ेह नज़र आता है कि मीर शकील उर रहमान को ये प्रेशराइज करने के लिए किया गया है। अगर ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल खिलाफ है। हम इसकी सख्त और भरपूर मजम्मत करते हैं। जंग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ माजी में भी देखने में आई हैं। हमने ये देखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के एक दौरे हुकूमत में भी ऐसा हुआ। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने भी मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की थी और अब इमरान खान साहब की हुकूमत में भी ये सामने देखने में आ रहा है, ख़ास तौर पर डॉन ग्रुप और उसके बाद जंग और जियो के ख़िलाफ़। और ये सिर्फ उनके काम और कारकर्दगी की वजह से किया जा रहा है। ऐसा ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की बड़ी सहाफ़ती तंजीमें कह रही हैं, बल्कि आलमी तंजीमें, अमेरिका की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी ये कह रही हैं कि जंग और जियो ग्रुप के CEO मीर शकील उर रहमान साहब के ख़िलाफ़ को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है वो पर्सनल और पॉलिटिकल वेंडेटा है। ऐसा खान साहब हुकूमत में आने से पहले और उसके हुकूमत में आने के बाद भी ये कह चुके हैं कि वो इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान की पाकिस्तान में गिरफ़्तारी की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इसकी शदीद मजम्मत, बल्कि जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस के इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई जो हैं वो ख़राब हैं और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो बेरोज़गारी का शिकार हैं। मीडिया हाउसेस जो हैं वो माली बदहाली का शिकार हैं। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस सब हुकूमत के इस इक़दाम की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं कि माजी में इस किस्म के बहुत से इक़दाम किए गए, मीडिया हाउसेस को रोका गया, कलम को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन कभी भी इसके कोई अच्छे नताइज बरामद नहीं हुए। मैं यूसुफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन USA, मीर शकील उर रहमान की गिरफ़्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए। मीर शकील उर रहमान जबकि नैब की अदालतों के सामने पेश बाकायदगी से हो रहे थे तो उनकी अचानक गिरफ़्तारी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। आज़ादी इज़हार राय का हक़ सबको होना चाहिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए। पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन मीर शकील उर रहमान की गिरफ़्तारी की मजम्मत करती है। मैं जंग और जियो ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मीर शकील उर रहमान साहब की गिरफ़्तारी की मजम्मत करता हूँ, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चेयरमैन नैब को या उनके इदारे को जंग और जियो ग्रुप से कुछ मसाइल थे और मीर शकील उर रहमान साहब के ख़िलाफ़ एक पुराना केस इसलिए ताज़ा कर लिया गया है और उन्हें इसलिए गिरफ़्तार कर लिया गया है कि शायद गवर्नमेंट या नैब ख़ुद इस केस को मीर शकील उर रहमान साहब या उनके इदारे के अंदर काम करने वाले सहाफ़ियों को प्रेशराइज़ करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। आज़ादी सहाफ़त कभी भी किसी हुक्मरान को अच्छी नहीं लगी। हुक्मरानों का ये वतीरा रहा है कि वो मीडिया आउटलेट्स को, सहाफ़ियों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश करते रहते हैं, तरीक़े ढूंढते रहते हैं। मीर शकील उर रहमान साहब की जो गिरफ़्तारी है उस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा सकती है। नैब है उसका ये तरीक़ेकार अच्छा नहीं है। हम ख़ुद एहतसाब
کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن انتقام جو ہے وہ نظر آتا ہے، احتساب نظر نہیں آ رہا، انصاف نظر نہیں آ رہا۔ میر شکیل صاحب کے ساتھ جو پاکستان کے صحافی ہیں، جو اوورسیز میں پاکستانی جرنلسٹ ہیں، وہ یقیناً ان کے ساتھ ہیں، آزادی صحافت کے ساتھ ہیں۔ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ گروپس میڈیا آؤٹلیٹس کے اگر وہ تالیاں بجا رہے ہیں اس وقت، تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انتقام اندھا ہوتا ہے۔ آج میر صاحب کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہوگی، لیکن جب آپ کی باری بھی ہوگی تو ہم ایسے ہی آپ کے لیے، آپ کے حق کے لیے، آزادی صحافت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔